इस वक्त गज़ा मकबूजा फ़लस्तीन में जो हालात है, वहाँ पर जिस तरह से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है, उस पर एक दुनिया चीख उठी है। लेकिन इसराइल पर दबाव डालने वाले यानी अमेरिका और जो उसके मगरबी इत्तेहादी है या उसको सपोर्ट करने वाले हैं, वो खामोश है। सिर्फ ज़बानी जो है बयानात जारी करने के सिवा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अब तक जो है 7 अक्टूबर से, जब से इसराइल ने हमला शुरू किया है गजा पर, उसके पूरा निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। तकरीबन 45,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। और ख़ास तौर से जो ममालिक फ़लस्तीन के कॉज की हिमायत करते हैं, वो भी इसराइल के साथ जो है पेंगे बढ़ा रहे हैं। कम्प्लिसिट उनका रोल है, ख़ास तौर से इंडियन हुकूमत का, क्योंकि इंडिया की हुकूमत का हमेशा से जो जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तब से ये एक बहुत ही मजबूत मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीन की अलहदा आज़ाद रियासत का हिंदुस्तान हमेशा हामी रहा है। लेकिन जब से 2014 में ये मौजूदा हुकूमत बसर इक़्तिदार आई है, उसका रवैया जो है इसराइल की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ नज़र आता है, जानिबदारा नज़र आता है। और ख़ास तौर से जो इसराइल में जो है इसराइल जिस तरह की नस्लकुशी कर रहा है गजा में, उसके ख़िलाफ़ जो है सिविल सोसाइटीज़ के मेम्बरान ने एक मेमोरेंडम डिफेंस मिनिस्टर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को पेश किया है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि इंडिया से जो असला इसराइल जा रहा है, जिन कंपनियों के ज़रिए जा रहा है, उनका जो लाइसेंस मनसूख किया जाए, कैंसिल किया जाए। इस सिलसिले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अरुंधति रॉय जो बुकर प्राइज़ विनर है, मशहूर वकील प्रशांत भूषण साहब, उसके अलावा वरिंदर करात और सिद्धार्थ वरदराजन और दीगर लोगों ने अपनी बात रखी और हिंदुस्तान पर जोर दिया। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा। In the medical community, I was just telling Vrinda that I think you should invite Dr. Ghassan Abu Sita to come and speak, because you know, even if you're not protesting, the thing is, collect the information and put it out. That is what is so shocking. You know, you don't have to. I mean, people must know what's going on, and what is going on is unthinkable in terms of killing doctors, bombing hospitals, cutting off water, cutting off electricity, cutting off movement, displacement. You know, so each of these things, the information needs to be put out, and you know, everybody needs to look at what they're good at and collect the information and find ways of putting it out, of sharing it with friends, with whoever, you know. So all of us are comfortable because they are managing to stop the information from coming out. Al Jazeera puts out the information, so every Al Jazeera journalist is being killed. Even today they killed two of the most important journalists. You know? So everyone has to think about what they can do. You know, nobody can just come and tell you what to do. But once you are aware of a situation like that, each of us goes out and collects our information somehow, you know. See, regarding protests, any group of any kind can protest. In my view, if collectively, let's say, even 100 people protest, the government will not be able to do anything about it, arrest 100 people, etc. They arrest one or two people in order to scare off the rest. But if collectively several people protest, then they can't do anything. Section 144 is the problem in places like Delhi, etc., because they've imposed 144. They don't allow you to protest without permission. They give permission only in Jantar Mantar, etc. But this is a problem peculiar to Delhi or maybe a few other places. It's not there across the country. Even in Delhi, there are places where 144 is not there, and certainly one can protest in Jantar Mantar, etc. without. I just want to add that I think there's plenty to do with or without getting arrested. And there's a small group called Indians for Palestine. If anyone here is interested in joining, please come to Vigan or to me after the event, and we'll be happy to connect you. जो नेतन्याहू के पार्टी के मेंबर हैं और एमपी हैं, और जैसे हिंदुस्तान में आमतौर पर ये सुनने को मिलता है
कि भाई अगर कोई बीजेपी का या कोई ऐसा कोई आदमी गिरफ्तार होता है जो जो सिस्टम को बड़ा प्यारा वो है, तो कहते हैं कि नहीं इसने किया नहीं होगा, ये इल्जाम झूठा है। इजराइल में जो मेंबरान पार्लियामेंट सड़क पर उतरे हैं वो कह रहे हैं कि ये इल्जाम सही भी हो, लेकिन जो काम जो कृत्य इन्होंने किया ये सही किया। यानी कि ऐसे ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट है उस देश में जो हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो खुल के बलात्कार, सेक्सुअल असॉल्ट, टॉर्चर ये कहते हैं कि जायज है। तो मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल क्लास के लिए बहुत बड़ी चुनौती कि आपने कैसे कैसे दोस्त पाल रखे, ये कैसा रिश्ता है। और ऐसी हुकूमत को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे जंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं, नस्लकुशी को, जेनोसाइड को आप बढ़ावा दे रहे हैं। कहाँ तक, किस दुनिया में ये भारत की नैतिकता के पक्ष में है, किस तरह से ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है, ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चिट्ठी भेजी गई पर रक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्री को, इसमें भारत सरकार गंभीरता से सोचे। ये सवाल मैं वृंदा जी से सहमत हूँ कि पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार से एक फॉर्मल स्टेटमेंट मांगी जाए जिसमें वो कमिटमेंट दे कि हिंदुस्तान कोई ऐसा रोल नहीं प्ले करेगा जिससे हिंदुस्तान के जो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। फलस्तीन में जो कुछ भी इस वक्त पुश्तखून जारी है उसके खिलाफ हिंदुस्तान से भी आवाज़ें उठ रही है, लेकिन वो आवाज़ें सिविल सोसाइटी की तरफ से उठ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जिस तरह से उठना चाहिए था वो नहीं उठी है, खासतौर से अपोजिशन की तरफ से। दूसरी तरफ जो हुकूमत का जो रवैया है वो दोहरा रवैया नजर आता है। यानी अरुंधति राय ने इसके बारे में यही कहा कि सोफिस्टिकेशन जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके नतीजे में हमारी जो मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो गैर अखलाकी, इमोरल हो जा रही है। उसी सिलसिले में जो इसराइल में, गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, जेनोसाइड के सिलसिले में जो है पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही है। आलमी अदालत ने भी कहा है, यूएन ने भी कहा है। सब कुछ कहने के बावजूद जो हथियार सप्लाई का जो मामला है, सब यहाँ से इंडिया से जो है हथियार जो है इसराइल को भेजे जा रहे हैं, उसी के खिलाफ सिविल सोसाइटी के ग्रुप ने जो है एक लेटर जो है डिफेंस मिनिस्टर को लिखा है जिस पर 25 लोगों के दस्तखत है। उनमें जो एक डिस्टिंग्विश सोशो इकोनॉमिस्ट जो है, यानी सोशोलॉजी के इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बहुत काम किया है सोशल कॉजेस के लिए। जान दरे साहब भी हैं, प्रोफेसर जान दरे साहब भी हैं, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जो इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया इसी मसले पर, जेनोसाइड जो हो रहा है और हथियार क्यों भेजे जा रहे हैं इसराइल को, क्यों भेजे जा रहे हैं, जिसके बारे में प्रशांत भूषण साहब ने भी कहा कि ये आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी है। जान दरे साहब, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट, क्या मकसद था इसके पीछे? मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो गाज़ा में हो रहा है इसका कोई बहाना नहीं हो सकता है। वहाँ 80% लोगों को विस्थापित किया गया है। विस्थापित करने के बाद बम किया गया है जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोग मर गए, इससे ज़्यादा लोग घायल हो गए। फिर उसके बाद इनको स्वास्थ्य का सुविधा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि हॉस्पिटल को भी बम किया है, हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य कर्मियों को भी मारा गया। उसके बाद उनको भूखा रखा गया क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ह्यूमैनिटेरियन एड जाने नहीं दे रहा है। और अब इलनेस, डिजीज़, मतलब क्योंकि लोग भूखे हैं, कमज़ोर है और सैनिटेशन की कमी है, तो अभी एपिडेमिक्स का भी खतरा है। इन चीज़ों का कोई भी बहाना नहीं हो सकता है। दिस इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, इट इज़ अगेंस्ट मोरालिटी, इसका कोई बहाना नहीं हो सकता। दूसरा, और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था ये बोलने के लिए कि इस अपराध में भारत सरकार भी शामिल है। ये दुख की बात है लेकिन कहना ज़रूरी है। और भारत सरकार के कॉम्प्लिसिटी के कई एस्पेक्ट्स है। मोस्टली मेन चीज़ ये है कि इजराइल और भारत के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, मतलब डिफेंस में उनके कई तरह के टाइज है। जैसे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इजराइल से लगातार यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से भी वहाँ जा रहे हैं और जैसे भी हथियार जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल गाज़ा में हो रहा है। और ये पूरा भारत सरकार की सब्सिडी लेकर, जैसे कई जॉइंट वेंचर्स है
जिसमें इसराइली कंपनियां भी शामिल है और इंडिया की कंपनियां भी, जैसे अदानी ग्रुप, रिलायंस और कई कंपनी है, जैसे कल्याणी ग्रुप, तो वो उसमें शामिल है। और इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडीज लेकर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वहाँ बेच रहे हैं, और इनका इस्तेमाल कभी कभी गाजा में हुआ और आगे हो सकता है। तो ये कम्प्लिसिटी का एक डायमेंशन है। दूसरा, यहाँ से इजराइल गवर्नमेंट की मांग को लेकर भारत सरकार मजदूरों को भेज रहे जी। है, और मजदूर बेचारा इनको तो जी, जी। जाना ही है, बेरोजगारी और गरीबी के लाइफ ऑफ इनको इनोसेंट तो पीपल। हाँ, इनको लगता है कि मेरे परिवार में हाँ। लोग रोजगार नहीं है, गरीबी employment में है, तो मैं जी। वहाँ जाके कमाऊँ, तो हम समझ सकते हैं जी। लोग जाते हैं। जी। और इनको शायद पूरा राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट भी शायद पूरा पता नहीं है, लेकिन एनीवे ठीक है, इनको तो वो लोग तो जा रहे हैं, बट गवर्नमेंट, ये दिस इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जी। अंडरस्टैंडिंग जी। इनिशिएटिव, तो इसमें भी कम्प्लिसिटी आता है। और तीसरा, भारत सरकार भारत में किसी तरह का प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही। आप यहाँ से पैलेस्टाइन के फ्लैग निकाल के एंड जिनोसाइड चिल्लाएंगे तो आपको तुरंत बंद किया Arrest जाएगा। कर दिया। जबकि अगर आप इजराइल का फ्लैग लेके जाएंगे तो कोई, रोकेगा नहीं। जबकि जिनोसाइड तो इजराइली कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं। एंड फाइनली, इवन इन द यूनाइटेड नेशंस भारत सरकार का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा, जी। कई बार अब्सटेन किया है। जी। और खास करके अप्रैल में जब एक रेजोल्यूशन आया था कि नो कंट्री शुड सेल आर्म्स टू इजराइल, वो उसमें भारत अब्सटेन किया है, क्योंकि इनको पता है कि हम तो बेच रहे हैं, तो कैसे हम इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। सो देयर आर एटलीस्ट 3 or 4 डायमेंशंस ऑफ कम्प्लिसिटी, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन पब्लिक को ये समझना जरूरी है, एंड उसके खिलाफ मुझे लगता है कि आवाज़ उठाना जरूरी है। एक और बात सर, ये इसराइल जो है फॉरेन सॉइल पे जाकर जो है लीडर्स जो भी उसके एडवर्सरीज होते हैं उसको जो असैसिनेट कर देता है। लेटेस्ट कैजुअलिटीज इस्माइल हानिया, तो ये जो सिचुएशन है इसको वर्ल्ड लीडर्स जो है ये 1956 से चला आ रहा है। दिस सीक्वेंस इज गोइंग ऑन सिंस 1956। 60 लोगों को, 60 लीडर्स को अब तक जो है जितने भी उसके एडवर्सरीज थे उनको ही किल। क्या कहेंगे इसके बारे में सर? दुख की बात है कि ये जो पॉलिसी है घर में घुस के मारना, जी। ये अब भारत सरकार भी इस तरह का जी। नीति जी। अपना रहे हैं। जी। They are seeing it as a model. For them, Israel is a model. It's a model of defense, crowd control, and so-called Yeah, policy. muscular handling Yeah. of opposition. So this is the tragedy, and आप सही कर रहे हैं कि इस तरह का assassinations कई जगहों में हुआ है इसराइल के जी। को लेकर, बट आजकल कभी कभी भारत भी करना शुरू किया, ये भी एक चिंताजनक बात है। आखिरी बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि यू बिलोंग टू ए यूरोपियन कंट्री, आप यहाँ पर आके सोशल कॉजेस के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने बारे में थोड़ा, क्योंकि आपका चेहरा देखेंगे हमारे चैनल पर लोग तो कहेंगे कि ये क्या है, तो थोड़ा सा, और आप हिंदी और उर्दू भी बहुत अच्छी बोल रहे हैं। इसका अलग से चर्चा करना हाँ हाँ, पड़ेगा। नहीं, सिर्फ नाम बता दीजिए किस अभी कंट्री से। देखिए, मैं तो बेल्जियम में तो पैदा हुआ, हाँ हाँ, बेल्जियम बट से। आई हैव लिव्ड मोस्ट ऑफ माय लाइफ इन इंडिया। Yeah. आई एम इंडियन, आई एम इंडियन सिटीजन। इंडिया, भारत में तरह तरह के लोग हैं, और हाँ, हाँ, कई लोग हैं जो जी, that's right. बाहर पैदा हुआ। क्यूरियोसिटी है ना, जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे तो So I feel I am not less Indian. I am part of the diversity of Yeah. India. I'm happy in India. I would stay here, and my heart is here. जान दिरे साहब, प्रोफेसर जान दिरे साहब, जिनका ताल्लुक बेल्जियम से है, लेकिन अब वो भारत के शहरी है। यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो तफसीलात थी उसके बारे में बता रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट है वो कम्प्लिसिट है, जो वहाँ पर गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ लोगों को जो मारे जा रहे हैं, अब तक 45,000 से ज़ायद जो लोग जो है शहीद किए जा चुके हैं। 7 अक्टूबर से जब हमास ने जो है पहली मरतबा इसराइल पर हमला किया था, उसके बाद से जो है जवाबी कार्रवाई में गजा में जो है 45,000 से ज़ायद लोगों को जो है हलाक किया है इसराइल ने, जिसमें बच्चों की और ख़वातीन की और बूढ़ों की एक बड़ी तादाद है। और वहाँ का जो निज़ाम ज़िंदगी है पूरी तरह से टूट फूट चुका है, ना अस्पताल बाकी रहे हैं, न इलाज मालूजी की सहूलत है, और फाके की नौबत आ रही है, जिसके बारे में
यूनाइटेड नेशन ने भी खबरदार किया पूरी दुनिया को कि वहाँ पर फेमिन जैसी हालात, फाका कशी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका और जो इसराइल के बैक करने वाले ममालिक है, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह, ये जो है उस पर जो है दबाव नहीं डाल रहे हैं। और कल ही जो है आप जानते हैं जो हमास के सबसे बड़े लीडर थे और फ़लस्तीन की जो वज़ीर आज़म थे इस्माइल हनिया साहब को तेहरान में किस तरह से शहीद कर दिया गया। और ये इसराइल की पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि गुज़िश्ता 50 सालों में, 50-60 सालों में, 75 सालों के अंदर जो है इसराइल ने तकरीबन 60 जो है जो भी उसके मुखालिफिन लीडर थे जिसे उससे खतरा नजर आता था, फॉरेन साइल पर जाकर यानी गैर मुल्क में जाकर उन्हें हलाक किया है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई थी, इसमें ये मेमोरेंडम जो है डिफेंस मिनिस्टर को पेश किया गया है और मुतालबा किया गया है कि इंडिया जो है असला इसराइल को भेजना बंद करे और जो कंपनियां जो ये असला इसराइल को एक्सपोर्ट कर रही है उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। Genocide is being committed against any country, against the people of any country. Any moral nation has no right or authority to aid that genocide. It's very clear that genocide is being committed in Palestine by Israel. The International Court of Justice has virtually said so. The International Court of Justice has also said that Israel is an illegal occupation of Palestine. Now, India has signed the Genocide Convention, ratified it also. That convention says that no country in any manner shall aid the act of genocide. By exporting arms to Israel which are being used in this genocide, India is clearly aiding that genocide. And that's what this representation sent to the defense minister says by about 25 very eminent citizens of this country, that you must immediately stop the export of arms to Israel, which Indian government has been permitting even after this genocide began in October last year. So they are also in the violation of international. Yes, they are in violation of international law. Article 21 of the Constitution gives the right to life or liberty to every citizen of every country, not just to Indian citizens. And if Indian government is doing things which is destroying the lives of people in other countries, that itself is a violation of Article 20. सर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? एक तरफ तो फिलिस्तीन को ही मदद करते हैं दवाइयाँ पहुँचाकर, उधर इसराइल को ही मदद कर रहे हैं हथियार पहुँचाकर। यही तो सवाल है कि आप एक बार कह देते हैं यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में कि भाई इजराइल को सीज फायर करना चाहिए, उसके बाद एक और रेजोल्यूशन आता है कि भाई सीज फायर भी करना चाहिए और किसी देश को आर्म्स नहीं एक्सपोर्ट करने चाहिए। अब आप उसके खिलाफ वोट कर देते हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप दिखाने के लिए ये कह देते हैं कि भाई सीज फायर हो जाना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव सीज फायर करने के लिए इजराइल उसको कंप्लाई नहीं करता। लेकिन आप उस नॉन कंप्लायंस में इजराइल की मदद कर रहे हैं। लेकिन सर अगर भारत में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है फिलिस्तीन के लिए, 45,000 लोग लगभग जान गंवा चुके हैं, वहीं अमेरिका जंग में भी एक तरह से उतर रहा है इसराइल के साथ, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भारत में? देखिए, भारत में प्रोटेस्ट के सारे जरिए करीब करीब भारत सरकार ने बंद कर दिए। कहीं आर्टिकल 144 लगा देते हैं जैसे दिल्ली के ज़्यादातर एरियाज में, कहीं जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको अरेस्ट कर लेते हैं, मारपीट कर देते हैं। इस वजह से बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इस समय कई लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब लोग कलेक्टिवली प्रोटेस्ट करेंगे तो भारत सरकार उसको नहीं रोकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इन लोगों ने खुलकर जो है ये बात कही कि हिंदुस्तानी हुकूमत का जो रवैया है, ख़ासतौर से बीजेपी हुकूमत का जो रवैया है, वो जो है बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है और इसके नतीजे में हिंदुस्तान को बड़े मसाइल भुगतने पड़ सकते हैं, आगे भुगतने पड़ सकते हैं। ख़ासतौर से प्रशांत भूषण ने आर्टिकल, हमारा जो दस्तूर है उसका आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा कि ये जो है गज़ा में जो है
जो असला भेजा जा रहा है, इसराइल को जो भेजा जा रहा है, ये आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी भी है। और इन लोगों ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो अपोजिशन पार्टियों से अप्रोच करेंगे, उनके एमपी से अप्रोच करेंगे ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। इस सिलसिले में बिरिंदा किरात ने भी कहा कि जो बजट का इजलास चल रहा है उस दौरान जो है इस मसले को उठाया जाएगा और हुकूमत पर दबाव बनाया जाएगा कि ये जो जिन कंपनी का जो असला साज कंपनियां इसराइल को असला भेज रही है उनका लाइसेंस ख़त्म करे, ये हुकूमत ख़त्म करे। आप जानते हैं कि इसराइल की जो है गुंडागर्दी और दहशतगर्दी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। इसराइल हमास के जो सबसे बड़े रहनुमा थे इस्लाम हनिया साहब, जो वहाँ वज़ीर आज़म भी रहे, उनको कल तेहरान में शहीद कर दिया गया था। तो ये जो सूरत हाल है उससे जो है वहाँ मशरिक़ वस्त की सूरत हाल बड़ी संगीन से संगीन होती चली जा रही है। और इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी का कहना है कि तमाम इंसाफ पसंद लोगों को और हुकूमतों को इस सिलसिले में मदाखलत करना चाहिए और इसराइल की जो ये दहशतगर्दी बढ़ती हुई दहशतगर्दी जारियत को रोकने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।